Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So today SSC has released its calendar, and many of you have asked one question, Sir, what does it imply? Whether IBPS will come out with its calendar, whether CET will be implemented in 2022, what are your views? Now there are contradictory signals that is emerging. On one side, the government has stated that they will initiate NRA in March 22. On the other hand, SSC has come out with the calendar with the dates of advertisement. So whether in March 22 they will only create an organization and then they will wait for implementation of common test till 2023, it is not clear. So what is the safe thing? We should wait for IBPS calendar in the month of January or February. Usually it comes in January. Last year, in 2021, it came in February. So we should wait for the calendar. But as a candidate, if you are preparing for examination in banking and want to appear in 2022 exam, I have already given you a suggestion that you should start your preparation on the present pattern. That means you should prepare for English, quant, reasoning along with current affairs. So this preparation can help you in 2022 examination, whether these happens as per existing pattern or if government decide to introduce new pattern. But till government clear its stand or IBPS clears its stand, it is very difficult to say whether 2022 will be CET implementation year or not. Because IBPS is also doing its preparation for conducting examination in next year. They have called the tender from the new testing organizations and all that. So the signals are confusing. And I told you in my earlier videos also, unless some clarity comes, the candidate should continue their preparation on existing pattern. The best case scenario is this present system will continue. The worst case scenario is new system is introduced. Even if new system is introduced, there may be addition of 1 or 2 paper. So safe recourse is don't waste our time on discussion whether CET will come or not. Because nobody can say with certainty what is in mind of government. Because we have to only follow what is before us. SSC organization, they have come out with the calendar up to 2023. So signal is totally conflicting what government is saying otherwise. So let's wait. But as a candidate, we should not lose our time. We should prepare on the present pattern. That is the safest way. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. एसएससी कैलेंडर आ गया. एसएससी के कैलेंडर के आते ही काफी लोगों के मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई कि क्या आईबीपीएस कैलेंडर भी आएगा, क्या 2022 में एग्जाम प्रेजेंट पैटर्न से होंगे या सीईटी लागू हो जाएगा. अब इसमें यदि हम देखें तो बड़े कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स हैं. गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आई वो ये आई कि मार्च 22 के अंदर नया सिस्टम के बारे में शुरुआत हो जाएगी. मींस ये था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एक शेप ले लेगा मार्च के अंदर और वो हो सकता है 2022 में सीईटी के अंतर्गत एग्जाम करवा दे. दूसरी तरफ जो एसएससी है जिसको एग्जाम्स लेने हैं
उन्होंने अपना कैलेंडर घोषित कर दिया और उस कैलेंडर के अंदर 2023 तक की एग्जाम्स की डेट भी दे दी आपको। अब इन दोनों न्यूज़ को अगर हम सामने रखते हैं तो बिल्कुल कंफ्यूजन है कि क्या जो कैलेंडर है यही चलेगा या कैलेंडर कल को मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर मतलब कई सालों से ऐसा हो रहा है कि लागू हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। अब आईबीपीएस का कैलेंडर आएगा कि नहीं आएगा, ये भी सबके दिल में बात आ रही है। तो इसके लिए तो हमें जनवरी और फरवरी की वेट करनी ही पड़ेगी। हर साल जनवरी में आता है ये कैलेंडर और 2021 में ये फरवरी में आया, क्योंकि इस साल भी कंफ्यूजन था कौन सा पैटर्न होगा। तो कैलेंडर को आने पे ही ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि क्या पैटर्न होगा, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट का स्टैंड ये आता रहेगा कि हम सीईटी लागू कर रहे हैं, सीईटी लागू कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन बना रहेगा। और मेरा ख्याल जो एसएससी है, क्योंकि उनके पास अभी कोई सीईटी की इंस्ट्रक्शंस नहीं आई, तो उन्होंने अपना जो नॉर्मल तरीका है कैलेंडर रिलीज करने का वो कर दिया है। पर वर्ड है टेंटेटिव, तो कोई भी कैलेंडर कभी भी मॉडिफाई हो सकता है। तो इससे हम ये निष्कर्ष पक्का नहीं निकाल सकते कि सीईटी नहीं आ रहा, और ये भी नहीं कह सकते कि सीईटी आ ही जाएगा, कुछ नहीं कह सकते इससे, क्योंकि कुछ भी जो कैलेंडर्स होते हैं वो टेंटेटिव है। उसके अंदर एग्जाम्स की डेटें भी बदली जा सकती हैं, उसमें एग्जाम्स के पैटर्न भी बदले जा सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो पास्ट में ऐसा भी हुआ, एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गया, किसी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, एडवर्टीजमेंट विड्रॉ हो गया। आपने देखा आईबीपीएस क्लर्क में क्या हुआ, पिछले साल आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और ऑफिसर में क्या हुआ। तो इसलिए कैलेंडर आ जाना इस बात का कोई निश्चित चीज नहीं है कि भाई सीईटी नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। मेरा तो मानना नहीं है कि हम इसके ऊपर इतना ज्यादा कोई निष्कर्ष निकालें। सेफ रिकॉर्ड्स क्या है, हम कैंडिडेट है, हमें तैयारी करनी है, हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा प्रश्न होना चाहिए। तो मेरा मानना शुरू से यही है कि जो प्रेजेंट पैटर्न है उस पर आपको तैयारी जारी रखनी चाहिए। मीन्स 3 सब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे, ये पैटर्न चले या पैटर्न बदले, वो है इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इसकी तैयारी करिए। करंट अफेयर हमेशा से ही पार्ट रहा है कंपटीशंस का, करंट अफेयर कर लीजिए, साथ में तैयारी करते रहिए। जब भी पैटर्न आएगा या एडवर्टीजमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी को मॉडिफाई कर लीजिए। पर कंक्लूजन निकालना बहुत मुश्किल है। देखो, टोटल कंफ्यूजन है, क्योंकि वर्ड अभी भी कैलेंडर पे टेंटेटिव ही, और टेंटेटिव ही वर्ड होता है हमेशा, क्योंकि डेटें ऐसा नहीं है एक बार कह दी तो वो डंके की चोट पे वही डेट होगी, नहीं, बदल जाएगी डेट। एग्जाम का पैटर्न बता दिया, एग्जाम का पैटर्न बदल जाएगा, आपके सामने है। नोटिफिकेशन आया, विड्रॉ हो गया, दोबारा नोटिफिकेशन आया एग्जाम का, उसके अंदर लैंग्वेजेस ऐड हो गई। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब कोई चीज हमें स्पष्ट ही नहीं है तो उसमें कोई भी व्यक्ति क्या व्यू देगा। मान लो आप कह रहे हो अपना व्यू दीजिए, तो जो चीज पता ही नहीं है उस पर हम क्या व्यू देंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि जब कोई चीज स्पष्ट ना हो तो जो एग्जिस्टिंग पैटर्न चल रहा होता है उस पर ही हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट रोकी नहीं जाएगी सिर्फ इस वजह से कि सीईटी लागू नहीं हुआ। अगर सीईटी गवर्नमेंट नहीं ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर पाती है 2022 में, तो रिक्रूटमेंट रोकी नहीं जाएगी। रिक्रूटमेंट होगी या तो नए सिस्टम से या पुराने सिस्टम से। जो मेरा अनुभव कहता है, कभी भी एक सिस्टम नहीं बना इसके लिए रिक्रूटमेंट रोक दी जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। नया सिस्टम बन जाएगा तो नए सिस्टम से रिक्रूटमेंट होगी, नहीं बनेगा तो पुराने सिस्टम से होगी। इसलिए जब तक क्लैरिटी नहीं होती हमें एग्जिस्टिंग सिस्टम से तैयारी करनी चाहिए। मेरा मानना ये है। गॉड ब्लेस यू ऑल।